So in this video we are going to discuss about the s block elements. When elements in which valence or the outermost electron enters in the s orbital, they are known as s block element. Now for example, जब आप periodic table बनाते हैं, so in that case लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड होती है, यहाँ पे इनिशियली दो ग्रुप होते हैं, ठीक है. देन नेक्स्ट दीज आर द पी ब्लॉक एलिमेंट्स. इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द पी ब्लॉक. इन दिस केस इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एस ब्लॉक. तो इसमें दो कैटेगरी आती हैं, ग्रुप 1 एंड द ग्रुप 2. नाउ दीज टू ग्रुप्स are known as s block element because in that case their valence or the outermost electron enter in s orbital. Group 1, for example, lithium, atomic number 3, configuration is 1s2 2s1. So electron enter in the s orbital. Then the sodium, atomic number 11, 1s2 2s2 2p6 3s1. So electron enters in the s orbital. Similarly for the potassium, atomic number 19, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1. So these are all the group 1 element where only one electron enter in the s orbital, hence they are considered as group 1 element, and they are also known as alkali metals. Now the question, why they are known as an alkali metals? Because these metals or we can say sodium for example, they react with water and form the hydroxide, and these hydroxides are bases which are water soluble, hence they are known as alkali metals. So in this video we will discuss the properties of group 1 alkali metals in detail. Now the first point is the occurrence of these metals. So these metals are very present in a very large amount. Only francium, which is present in traces because it is a very radioactive element. तो ठीक है, तो ये बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है. इसकी हाफ लाइफ लेस देन 21 मिनट्स है. तो इट इज़ अ वेरी रेडियोएक्टिव एलिमेंट एंड इट प्रेजेंट in traces only. Now if we discuss about the sodium and the potassium, so they are the 7th and the 8th most abundant element on this earth crust. तो earth crust में इनकी abundance सबसे ज़्यादा है among the all alkali metal. And one more thing, these are the highly reactive metals. अगर हम reactivity series जब करते हैं then sodium, potassium, they are highly reactive. So they never exist in free state. They always exist in a combined state, whether in a form of rock salt. Rock salt में Na present होता है. Then in case of the borax, ये आप next chapter में करेंगे. So all these compound contain a part of sodium in it. Potassium जो है, potassium present होता है कार्नालाइट और है इसकी, ठीक है. देन KCl की फॉर्म में प्रेजेंट होता है. लिथियम प्रेजेंट होता है इन अ फॉर्म ऑफ इट्स सिलिकेट्स, एंड ऑल दीज टू एलिमेंट्स आर प्रेजेंट बट इन वेरी स्मॉल अमाउंट. सो द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ग्रुप 1 और अल्कली मेटल इज द इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन. इनर्ट गैस की ब्रैकेट में आएगी और बाहर हो जाएगी NS1. नाउ फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी मैंने बताया लिथियम के लिए, लिथियम एटॉमिक नंबर 3 1s2 2s1, और 1s2 किसका होता है? हीलियम का. तो उसको हम लिख सकते हैं हीलियम 2s1. सिमिलरली सोडियम एटॉमिक नंबर 11, लॉन्ग फॉर्म में लिखें तो काफ़ी लंबा जाता है, बट अगर हमें शॉर्टकट करना है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं नियॉन 3s1. then potassium 19, argon 4s1. now one of the important point, all the s orbital contain only one electron which is unpaired, and hence we can say alkali metals are paramagnetic in nature. पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना. तो यहाँ पे s ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. सो फ्रॉम दिस वी गेट ऑल दीज अल्कली मेटल्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर.
and other point, by losing one electron they are achieving the noble gas configuration, hence they are highly reactive and they easily lose one electron to form monopositive ion. तो जो भी मेटल अपनी इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो सिर्फ एक मोनोपॉजिटिव आयन इजीली फॉर्म कर जाता है. सो हेंस इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. पहले मैंने जर्नल लिखा था, बट अगर हम स्पेसिफिक लिखें तो ये मोनोवेलेंट आयन बनाता है. मोनोवेलेंट का मतलब है विच हैज़ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव आयन एंड द सोडियम मेटल? अगर मैं इसकी कन्फिग्रेशन लिखती तो इट इज 1s2 2s2 2p6 3s1. तो जैसे ही S1 ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, अब इसके पास नोबल गैस कन्फिग्रेशन आ गई. एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन इसके सारे पेयर्ड हैं, तो जितनी भी कटायंस हैं दे ऑल आर डायामैग्नेटिक. जैसे कि अभी हमने बात की कि ऑल अल्कली मेटल्स आर पैरामैग्नेटिक, दीज आर डायामैग्नेटिक, दीज आयंस. और वो रीजन क्या है? जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा, जो बाकी की कन्फिग्रेशन बचेगी उसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, इसलिए. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द एटॉमिक रेडियाई. एटॉमिक रेडियाई इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन. सो वी विल डिस्कस एटॉमिक रेडियाई अलोंग द पीरियड एंड द डाउन द ग्रुप. नाउ इन केस ऑफ पीरियड, अगर हम किसी भी फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट का एक पीरियड चूज करें, फॉर एग्जांपल मैं लिथियम का जो सेकेंड पीरियड है वो चूज कर रही हूँ, तो एज वी मूव अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजिंग. फॉर एग्जांपल ये 3, atomic number 4, 5, 6, 7, 8, 9. So electron are increasing, nuclear attraction increasing, size decreasing. So as we move along the period, since nuclear attraction increase due to which size decrease, so lithium is the biggest in size in comparison to all its period member. But when we move down the group, no doubt electron are increasing. It is 3, then 11, then 19, and then so on. Electron is increasing, but in addition to electron, number of shells also increasing. In above case, it is the same shell. अगर हम बात करते हैं तो it is NS2 NP6, तो NP में N सेम रहा, तो इलेक्ट्रॉन सेम ही शेल में ऐड हुए और अट्रैक्शन बढ़ गई और साइज छोटा हो गया. बट लिथियम का साइज कंपैरेटिवली अपने पीरियड मेंबर से सबसे ज़्यादा होगा. बट जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज, न्यूक्लियर अट्रैक्शन अब कम हो जाएगी, सो ड्यू टू विच साइज इंक्रीजेस. So in that case, lithium is the small in size in comparison to other group members. So as we move down the group, size increases. Now the next point is the ionization enthalpy, that is amount of energy required to remove an electron from the outermost shell. Now configuration is NS1, और इससे पहले कोई भी नोबल गैस की configuration होगी, then NS1 अभी हमने डिस्कस किया था. ग्रुप मेंबर्स में और वी कैन से इन पीरियड मेंबर्स में इनका सबसे बिगर साइज है. पीरियड में अलोंग द पीरियड सबसे बिगेस्ट साइज ग्रुप 1 मेंबर्स का है. सो न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम है, इट इज इजी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन एंड हेंस दे पोजेस लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी. व्हाई इट इज लो आयोनाइजेशन? बिकॉज ऑफ इट्स बिगर साइज इन कंपैरिजन टू अदर पीरियड मेंबर्स. और जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं साइज और बड़ा होता जा रहा है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन और कम होती जा रही है. सो इट बिकम मोर एंड मोर इजी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ अल्कली मेटल. सो इफ वी कंपेयर lithium, sodium, potassium, rubidium or cesium, it is very easy to remove an electron from cesium because it is biggest in size, have very less attraction and it can lose easily electron, hence it possesses low ionization energy. Now for example, lithium having configuration 1s2 2s1, sodium having configuration 1s2 2s2 2p6 3s1. So when it is losing one electron and forming an electropositive element, इनकी configuration change हो जाएगी, 1s2 हो गया,
Na+ के केस में 1s2 2s2 2p6 हो गया, बट नाउ दे पोजेस वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इस पॉइंट से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट है। रीजन, अब इनकी नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन हो गई, इट पोजेस वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम बात करें ये आयोनाइजेशन एनर्जी 1 है और ये आयोनाइजेशन एनर्जी 2 है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी 2 is very greater than the first ionization. Why? Because in this case they have to remove electron from the noble gas configuration, which is very difficult, whereas in this case by losing one electron they are achieving the noble gas, so they can easily lose electron, hence they possess lowest first ionization energy but possess very much highest second ionization energy. Now one of the application of this ionization energy, because they possess, alkali metal possess low ionization energy, they are very easily used in the photoelectric cells. Now why alkali metals are used in photoelectric cells? Because they have very low ionization energy, they can easily lose electron. Now for example, out of lithium, sodium, potassium, rubidium and cesium, which one possess the lowest ionization energy? Cesium. तो अगर हम कंपेयर करें लिथियम और सोडियम में से, तो कौन फोटोइलेक्ट्रिक सेल में यूज किया जाएगा? सीजियम। रीजन, बिगर साइज है एंड इट रिक्वायर वेरी लेस एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। सो बाय यूज ऑफ सनलाइट ओनली दे कैन emit an electron and produce the photoelectric effect. दैट इज वो एक इलेक्ट्रॉन एमिट कर सकते हैं जैसे ही इन पे कोई लाइट फॉल करेगी। दे पोजेस सो मच ऑफ लो आयोनाइजेशन एनर्जी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द हाइड्रेशन एंथैल्पी। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 mole of gaseous ion combined with water to form hydrated ion. Now for example, gaseous ion का मतलब हुआ जैसे लिथियम आयन है। अब रीजन ये स्मॉल साइज है, हाई चार्ज है और वाटर हमारा पोलर होता है, तो इट विल अट्रैक्ट द वाटर मॉलिक्यूल टुवर्ड्स इटसेल्फ, ड्यू टू विच द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 mole of gaseous ion combine with water to form hydrated ion. अब रीजन, जितना ज़्यादा स्मॉल साइज होगा उतना उस पर हाई चार्ज होगा और हाई चार्ज कैन ईजिली हाइड्रेटेड टू द मैक्सिमम। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर बाकी कटायन से मैं कंपेयर करूं तो लिथियम प्लस आयन पोजेस द मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी, देन द सोडियम आयन, देन द पोटेशियम आयन, देन द रुबीडियम एंड देन द सीजियम। रीजन, सभी पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव मोनोपॉजिटिव चार्ज है, सिंपल +1 चार्ज है। जितना ज़्यादा साइज छोटा होगा अपने आप चार्ज वो हाई हो जाएगा। सो लिथियम प्लस आयन पोजेस मैक्सिमम टेंडेंसी टू हाइड्रेट मोर अमाउंट ऑफ वाटर, हेंस इट पोजेस हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी। नाउ फॉर एग्जाम्पल, एक एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब वाटर में ये आयन्स प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, लिथियम आयन भी प्रेजेंट है और सीजियम आयन भी प्रेजेंट है। नाउ विच वन कैन ईजिली मूव? कौन ईजिली मूव कर सकता है? जो कम हाइड्रेटेड होगा। तो सीजियम कैन मूव फास्टर, तो रिवर्स हो जाएगी मोबिलिटी कौन सबसे ईजिली मूव कर सकता है? सीजियम आयन, बिकॉज वो सबसे कम हाइड्रेटेड है। लिथियम आयन के केस में वो ऑलरेडी वाटर से सराउंडेड है कि अब उसकी मूवमेंट हिंडर्ड हो गई, वो अच्छे से मूव नहीं कर पा रहा, बल्कि सीजियम उतना हाइड्रेटेड नहीं है तो वो इजीली वाटर में मूव कर पाता है। तो मोबिलिटी के केस में ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। सीजियम पोजेस द हाईएस्ट एंड लिथियम आयन, सीजियम आयन पोजेस द हाईएस्ट मोबिलिटी मीनिंग एक्वस सॉल्यूशन में मूव करना, वेयर एज lithium plus ion possess the lowest mobility in the aqueous solution. aqueous solution में सबसे कम mobility इनकी present है। Now the next property is the flame coloration. All the alkali metals as we have discussed, they possess low ionization enthalpy. सो वेन वी आर प्रोवाइडिंग द हीट, जैसे अगर हम इसको बंसन बर्नर के फ्लेम में हीट करते हैं फॉर एग्जाम्पल, सो मेटल को हमने
directly heat kiya in this flame, then we get a characteristic color. Now what happened in that case, since they possess low ionization energy, then the valence electron easily excited to the higher energy level, and when from this level this electron falls to the ground state. तो पहले ये ground state होता है, हमने हीट किया उसको, हीटिंग से इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन की, वो एक्साइटेड स्टेट पे पहुंचा. Now on reaching excited state, after some time it loses energy and it fall back into the ground state. और जैसे ही वो ग्राउंड स्टेट में आता है और जो एनर्जी एमिट होती है एच न्यू की फॉर्म में, इफ इट फॉल्स इन द विजिबल स्पेक्ट्रम, अगर ये लाइट विजिबल स्पेक्ट्रम में, एनर्जी विजिबल स्पेक्ट्रम में लाई करती है वेवलेंथ, देन वी ऑब्जर्व दैट पर्टिकुलर कलर. नाउ फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ लिथियम वी ऑब्जर्व द क्रिम्सन रेड कलर. In case of sodium, it is yellow in color. In case of potassium, it is violet. And in case of rubidium, red violet and cesium blue. So it is a characteristic property of alkali metal that they show the color, flame coloration because of their low ionization enthalpy. Next we will discuss the chemical properties of alkali metal. So first one is the reaction with oxygen. So lithium, Li react with oxygen forming Li2O and in this case it is lithium monoxide. ये एक डिफरेंस है जो सभी अल्कली मेटल्स आपस में पोजेस करते हैं. लिथियम फॉर्म मोनोक्साइड, whereas when sodium is reacting with oxygen it will be forming the peroxide, that is sodium peroxide. No doubt monoxide it will be forming, but it will preferably form the peroxide. And when potassium is reacting with oxygen it forms the superoxide, that is KO2, and now it is forming potassium superoxide. Now why this difference occur? In general we can say alkali metal react with oxygen and form this oxide M2O, but the difference is that lithium will form the monoxide, sodium will form the peroxide, and as we move down the group tendency to form superoxide increases. अब इनमें डिफरेंस क्या है? अब देखिए यहाँ पे Li2O में O पे चार्ज कितना हुआ? O पे 2 माइनस, ठीक है, Li2 प्लस है तो O पे 2 माइनस हुआ. अब जब वो peroxide बना तो Na2 है और ये भी O2 है, तो हर एक पे एक ही सिंगल माइनस हुआ. सिमिलरली नेक्स्ट हम KO2 में पहुंचे तो ये तो +1 है पर O2 2 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे कितना चार्ज हुआ? -12. तो मोनोक्साइड के केस में -2 हुआ, पेरोक्साइड के केस में O पे -1 चार्ज हुआ और सुपर ऑक्साइड के केस में -12 हुआ. और अगर हम ऑक्सीजन को कंपेयर करें तो हेयर O पे 2 माइनस, इन दिस केस O2 पे 2 माइनस, O2 पे 2 माइनस, तो सिंगल O पे -1 होगा. एंड सिमिलरली O2 पे -1 तो सिंगल O पे कितना होगा? -12. तो ये डिफरेंस है. नाउ द रीजन इज स्मॉलर कैटायन स्टेबलाइज द स्मॉलर अनायन. अब लिथियम जो है Li+, उस पर हाई चार्ज है और स्मॉल साइज है. इट स्ट्रांगली बाइंड द ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन को स्ट्रांगली बाइंड करके करती है. इट डज नॉट अलाउ एनी अदर ऑक्सीजन टू एंटर इनटू इट. अदरवाइज दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो ये O2 पे 2 माइनस है, ये O2 2 पे 2 माइनस है, तो इसमें क्या हुआ? एक और ऑक्सीजन ऐड हो गई. पर क्योंकि लिथियम स्मॉल साइज का था तो इसने स्ट्रांगली इसको बाइंड करके रखा. सो वी कैन से लिथियम प्लस है यहाँ पे. सो लिथियम प्लस इज स्मॉल साइज स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फील्ड which attract the negative charge oxygen so strongly that it does not permit any more number of atom of oxygen to attract toward itself. तो ये O2 माइनस किसी और ऑक्सीजन को एंटर करने नहीं देता. रीजन वो ऑलरेडी लिथियम से स्ट्रांगली बाउंड होता है. Whereas in case of sodium plus and potassium plus ion, they has a weaker field which cannot prevent O पे 2 minus, O2 minus single to combine with another oxygen to form peroxide. यहाँ पे O2 माइनस है, वो इसको प्रिवेंट नहीं कर सकता कि वो किसी और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन ना करे. So the next topic is the reducing character. Now what is reducing character?
It is the tendency of an element to lose electron. Now for example, in case of alkali metal, अभी तक हमने डिस्कस किया, they possess low ionization energy, means they can easily lose electron and hence they possess greater reducing character. तो जितने भी अल्कली मेटल हैं उनकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है टू लूज इलेक्ट्रॉन, हेंस दे पोजेस ग्रेटर रिड्यूसिंग करेक्टर. सो द ऑर्डर ऑफ द रिड्यूसिंग शुड बी, लिथियम की सबसे हाई आयनाइजेशन होती है इन इट्स ग्रुप मेंबर, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम. तो ऑर्डर ये होना चाहिए कि सीजियम का सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग करेक्टर होना चाहिए, बट एक्चुअल में ऑर्डर इन एक्वस सॉल्यूशन इज लिथियम का सबसे ज़्यादा हो जाता है, दैट इज सोडियम. बाकी सारा ऑर्डर वैसे का वैसे ही है, पर एक्वस सॉल्यूशन में लिथियम पोजेस द मैक्सिमम रिड्यूसिंग करेक्टर. अब ये क्वेश्चन अराइज होता है वाई. सो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ. व्हाट डू यू मीन बाय द रिड्यूसिंग करेक्टर? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन. अब जिसकी ज़्यादा टेंडेंसी होगी लूज करने की इलेक्ट्रॉन, उसका स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग करेक्टर होगा. अब जितने भी अल्कली मेटल्स हैं दे पोजेस लो आयनाइजेशन एनर्जी. रीज़न, उनका साइज बहुत ही बिगर होता है, दे कैन ईजिली लूज इलेक्ट्रॉन. और जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है. तो सीजियम की सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, हेंस दे पोजेस ग्रेटर रिड्यूसिंग करेक्टर. बट इन एक्वस सॉल्यूशन एक एक्सेप्शनल बिहेवियर आ जाता है कि लिथियम का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग करेक्टर हो जाता है. ऐसा क्यों? सो रिड्यूसिंग नेचर इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन ई नॉट वैल्यू, दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. ऐसे ही अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही होती तो उसका होता ई नॉट, ये हम आर लेते हैं, ई नॉट ओ, यहाँ पे भी ओ आएगा और वो हो जाएगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जो हम रिडॉक्स चैप्टर में करेंगे. अब जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है इन केस ऑफ रिड्यूसिंग करेक्टर वो नेगेटिव होता है, इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी. जैसे अगर हम ई नॉट की वैल्यू लिखते हैं तो इट कैन बी -1.1 वोल्ट. अब ये ई नॉट होता क्या है? एक तरह से हम पोटेंशियल डिफरेंस जैसे मेजर करते हैं, तो ऐसे ही जब एक सेल फॉर्म होता है तो सेल के अंदर पोटेंशियल प्रेजेंट है. So electrode potential is the measure of tendency of element to lose electron in an aqueous solution. अगर हमने एक aqueous solution लिया है और कोई इलेक्ट्रोड लगाई है तो किसकी कितनी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करना. अब ये तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है, तीन मेजर फैक्टर्स हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं. वन इज द सब्लिमेशन, क्योंकि कोई भी हमारा सॉलिड फॉर्म में होगा तभी तो वो गैसियस आयन फॉर्म करेगा, तो लिथियम गैस बनेगा. ये ग्रुप 1 की बात कर रही हूँ, तो इट विल बी द सब्लिमेशन एनर्जी. तो एक पॉइंट हुआ कि वो सब्लिमेशन एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है. सेकेंड पॉइंट आयनाइजेशन एनर्जी, लिथियम से Li+ बना, देन दे पोजेस द आयनाइजेशन एनर्जी. एंड देन अब वाटर में प्रेजेंट है तो अभी हमने डिस्कस किया था कि उसकी हाइड्रेशन भी होगी, देन इट विल बी फॉर्मिंग द हाइड्रेटेड एक्वस आयन, एक्वस. तो ये हो गया इसका हाइड्रेशन एंथैल्पी. Now all these three together gives the E naught value, जो कि हमारी E naught वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी उतना स्ट्रॉन्ग उसका रिड्यूसिंग नेचर होगा. अब वो नेगेटिव क्यों होगी? Now the point is lithium possess the lowest ionization in comparison to other group member. अगर मैं सीजियम और लिथियम का कंपैरिजन करूं तो ऑब्वियस है सीजियम की आयनाइजेशन कम होती है, वो इजीली आयन बनाएगा. बट सेकेंड, दैट इज लिथियम पोजेस हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी इन कंपैरिजन टू सीजियम. वो क्यों? क्योंकि इस पे स्मॉल साइज है, हाई चार्ज है, ज़्यादा इजीली हाइड्रेटेड होगा, मोर हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी. तो ये जो हाई हाइड्रेशन है, हाई हाइड्रेशन एनर्जी मोर देन कंपनसेट इट्स हाई आयोनाइजेशन एनर्जी. एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि अगर आपके पास दो मेटल हैं, जैसे सीजियम से सीजियम प्लस भी बन रहा है और सीजियम से सीजियम एक्वस भी बन रहा है. अब क्वेश्चन ये है कि ये प्रेफरेबली इजीली हो रहा है और ये नहीं हो रहा, ऐसा क्यों? जबकि इसकी आयनाइजेशन कम थी तो ये इजीली आयन बना देता, इसकी आयनाइजेशन ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में तो इसकी टेंडेंसी फॉर्म होने की कम है,
पर रीजन क्या कि जैसे ही ये आयन बनी उसको स्टेबल किसने कर दिया, वाटर ने। कैसे? बाय हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो लिथियम की ज्यादा टेंडेंसी है हाइड्रेशन आयन बनाना। तो हाइड्रेशन आयन कैसे बनेगी, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो कहने को उसकी आयनाइजेशन ज्यादा है, बट आयनाइज होते ही उसको स्टेबल कौन कर रहा है, हाइड्रेशन एंथैल्पी। हेंस इट हैज स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म Li+ आयन in spite of having the high ionization in comparison to cesium। कि अगर हम सीजियम और लिथियम में कंपेयर करें तो लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी सीजियम से ज़्यादा है। तो मीनिंग ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, पर जैसे ही ये लिथियम प्लस बना देता है ये हाईली स्टेबल हो जाता है, क्योंकि इस पे हाई हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है जो इसे स्टेबल कर देती है। वेयर एज सीजियम से Cesium+ आयन तो बन गया कि भाई आयनाइजेशन एनर्जी कम थी, पर अब ये स्टेबल नहीं हो पा रहा उतना स्ट्रांगली जितना ये स्टेबल था। तो कौन बनना चाहेगा, जो ज़्यादा स्टेबल होगा। दैट इज वाई इन केस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग करेक्टर इज वीडियम, सीजियम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लिथियम। दिस इज इन केस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ लिथियम की है।